Arabs of these six countries, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, and UAE, they should be the last people to teach human rights to world, because the human rights situation in their own countries is worst. The domestic workers in Saudi families, they all are Muslims, most of them, from India, from Bangladesh, from Pakistan, from Malaysia, from Indonesia. They all are on $500 a month for 5 years contract as a slave, sexual slave and general labor slave. Don't have any right. They don't have any laws. They don't have any human rights. And they are talking about human rights in other countries. तो ये सब भाड़े के टट्टू हैं. जो पंजाबी आर्मी का स्टाइल है वो नजर आ रहा है यहाँ पे. इसमें कोई जेन्युइन आपको अरब अपने जेन्युइन कोर्स के साथ नहीं आएगा. ये इल इन्फॉर्म्ड हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, जैसे कि कॉमन पाकिस्तान साइड. They never spoke about Armenian genocide by Turkish. They never spoke about the Kurdish genocide in which they are being part. There are Arabs who are involved. If you study the map, Eastern Saudi Arabia, where Dammam, Tehran, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Oman, they had a vast majority of Shia people. They used to have in 30s and 40s and 50s. Where are they? These genocide have happened, and this lady is talking about India. Hello viewers, namaste, and welcome to IndusLens Show. And it is our honor to have our good friend Arif Bhai with us today. And Arif Bhai definitely need no introduction. He's a well-known human rights activist and has been working in UN, and we are attending UN sessions for over 2 decades now. And Arif Bhai, welcome to the show. It's an honor to have you. Thank you very much, and it's always a great pleasure to be on your platform, which exposes the truth only. Thank you, Arif Bhai. And Arif Bhai, I want to start with all those issues going on right now in this recent times, like about Islamophobia. We had been hearing Islamophobia in Western medias a lot, but recently this started. It was always in India, but recently we see like a lot of things coming out from Arab countries. We had seen that some of them are fake. Obviously, we'll talk about it in detail. But like mainly the princess of UAE, Hind Al Qasimi, she came on two typical Hindu-loving media platforms, and she gave an interview saying about she was disturbed by like couple tweets that were questioning Islam, and definitely anyone not questioning, but she found it derogatory, and definitely anyone insulting any religion is not right. But she do not realize how many anti-Hindu, Hindu-hating tweets originate from her own country on social media, and how many Arab countries, like these are anti-Hindu sentiments, and barely like Hindus have right. If I'm a Hindu, I cannot carry a Bhagavad Gita in Saudi Arabia if I'm not wrong. So what happens to Hindu phobia in those times? What do you think? Well, it's a very detailed question, and namaste viewers, and thank you very much for listening. I would take some time to explain in details. First of all, as you started your question by saying that first it was in Western media, you are talking about a section like New York Times, Washington Post, and some sections, but those newspapers are also not speaking against India only. Some Indian journalists writing for them, minting some dollars, they only do this. Otherwise, WHO director has praised Prime Minister Modi, UN General Secretary, President Trump, ex-White House spokesman, and then Bill Gates has written a letter to Prime Minister for praising his leadership during this crisis. So it's not Western media, first of all. It is some Indian journos who have some Western interests that they are promoting anti-India picture to West. Now coming to these Arab issues, now first of all, Arabs of these six countries, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, and UAE, Dubai is being part. They should be the last people to teach human rights to world, because the human rights situation in their own countries is worst. The domestic workers in Saudi families,
They all are Muslims, most of them, from India, from Bangladesh, from Pakistan, from Malaysia, from Indonesia. They all are on $500 a month for 5 years contract as a slave, sexual slave and general labor slave. Don't have any right. They don't have any laws. They don't have any human rights. And they are talking about human rights in other countries. Now talking about genocide of Muslims in India. They are making a mockery of this word genocide. It is a serious word which is attached to mass murders of humanity, of a group of people based on their religion, caste, creed, culture, ethnicity, color. But name me then when there is a genocide, when for example in a US state, in a school, there is a mass murder, a student kills 25 children, there is a list, and that mass murder is still not called genocide. Genocide is serious. Now they are talking about in India Muslim genocide. Name me one Muslim who was killed by Hindutva believers. Name me one Muslim who was extrajudicially killed by state forces. Nothing has happened like this in India. Genocide happened in Balochistan. Who are these Baloch people? Baloch language is the mother tongue of at second number in Dubai, in Oman, and these countries. After Arabic, Baloch language is second mother tongue. Now there is a regiment of UAE army and Oman army called Baloch regiment. There are indigenous Baloch people living in these countries, and these princes and these Arabs who are targeting Indian diversity and Indian secularism, they never spoke about Baloch genocide, which is happening since last 50 years in Pakistan by Muslim army of Pakistan, Punjabi army. That Punjabi Muslim army is committing a genocide of Baloch, Pakhtuns. Great genocide of Bengali people happened in 1971. These Arabs never spoke about this genocide. They never spoke about Armenian genocide by Turkish. They never spoke about the Kurdish genocide in which they are being part. There are Arabs who are involved. In that part of the world from where this princess is belonging to, Dubai, if you study the map, Eastern Saudi Arabia, where Dammam, Tehran, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Oman, they had a vast majority of Shia people. They used to have in 30s and 40s and 50s. Where are they? These genocide have happened, and this lady is talking about India. What is India? India is a country which inhabits most Muslims of the world, enjoying their freedom of faith, freedom of practicing their religion. They pray on the streets, which is not allowed in Dubai. They pray on the streets. And still they are talking about Islamophobia. They should visit the Jama Masjid area of Delhi tonight. They should visit Bhindi Bazaar of Mumbai tonight. Entire 130 crore people of India are doing lockdown, but these areas are open, overcrowded because of Ramadan. They are not maintaining the lockdown. Now my question to this lady of Dubai is, in fact, she is not from Dubai. Qasimi family is royal family of Sharjah. Sharjah is one state of United Arab Emirat. So Emirat has 7 states. So Qasimi family is royal family of, and she is one of the princes. Now don't go to the reputation of these princes. The wife of Prince Muhammad, the ruler of Dubai, has put a case of harassment against her husband, the ruler of Dubai. So don't go there. They have some vested interest in all these things. But my question to this lady is that if in Dubai, government comes to know that in an area, in a locality, there is a corona patient, and they send a medical team of nurses and doctors, and these people go there, and people start pelting stone on them. People start spitting on them. What would be the reaction of Dubai government? Still Indian government sent police. They did not beat anyone. They did not commit police encounter. They brought them to hospitals to treat them. What will Dubai government do to these people?
Yeah. I have lived in these countries. They don't have any rule of law. They can even kill people. They will shoot them if people will start pelting stones on the doctors and during these crises. So no, they don't have credibility. And finally, I would say that this is a small section of Arab vested interest people. Generally, Arab governments of Saudi Arabia, Emirat, and all this, they have very good relationship with India. They Yes. consider India as their future partner. The investment of Saudi Arabia in only Ambani Group, Reliance, is more than Saudi Arab's investment in entire Pakistan. Right. Yes. $300 billion investment Saudi Prince Mohammed has said that we will do in next 5 years in India. Yes. This is only on oil sector. There are so many other sectors. And then general masses of these countries, they believe that India is a great country and India has freedom. These small segments, I call them Punjabi Arabs because they are under influence of Pakistan army and politicians, retired and current generals who make billions of dollars in corruption in Pakistan and invest in these Arab countries to make their money, black money, white. So these are kafils of these rich Pakistanis who are influenced by fifth generation war people of Pakistan's ISPR. Okay. I'll use the terminology what she used exactly on on both the interviews. She mentioned the I what she her that's her quote, that what I had learned from the people around me, Hindus around me, that world is a family. That basically mean Vasudeva Kutumbakam. That's what she's talking about. But if she really believes in that concept, don't she see the other parts of the family, like parts in Pakistan and Bangladesh, when the on an average, the three girls in a day are kidnapped, forcefully converted, raped, used as a like a birth machine, like a kid generation machine, then they are dumped. Why don't they see the problems in that part of the family of the world? Well, they don't want to see it because the oppressor, one who is committing the genocide or who is doing discrimination is their brother, their Muslim brother. So they don't want to see them because then it will, in their opinion, it will malign Islam. So Hmm. these Baloch, Bengalis, we all are sacrificial lambs for them, Hmm. and they will never speak about us. And here also, I will again say that they, as she said, that she was informed about by people around her. Now, people around her are those vested interest Pakistanis who are investing millions of dollars, and she might be kafil of some of those Pakistanis who 24 hours propagating them. Now, for example, we have to see one more thing, that what has been the role of Arabs and Punjabis in the spread of global terrorism. Hmm. If you find two biggest components of global terrorism, it is Punjabi army and Arab investment. Hmm. Now, Jamaatul Dawa and Lashkar-e-Taiba and Taliban and Al Qaeda, who funded them? Arabs. In 9/11, was there any Hindu who attacked the 9/11? All of them were Arab. So these people should be the last one to educate anyone on human rights, racism, discrimination, and treating of minorities. These people should be the last one because first they themselves have to learn a lot. People, they had been requesting us not to only make interviews in English, and so we'll get into Hindi. But if they definitely, Princess want, she said they are a lot of Indians, Hindus around. She can get it translated later on. But for now, when you mentioned कि इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ है जो हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, तो आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इनको इन्फ्लुएंस करता है, कि मतलब जैसे अभी यूएस में तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इनका इन्फ्लुएंस क्या है, बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जो फंडेड है, एंटी हिंदू एंटी इंडिया मिशन पे काम करते हैं, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनकी रीच कैपिटल हिल तक है, वी नो दैट। बट इनका ये अरब देशों में जो देखिए कि नया कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट मेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको क्या लगता है कि ये कैसे वर्क करता है, और ये स्पेशली ये जो इस्लामफोबिया का ये जो नया कॉन्सेप्ट चला है इंडिया के खिलाफ, ये आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे?
देखिए ये टोटली जो स्टाइल है ना वारदात का, वो सीधा साधा पाकिस्तान की 5th जनरेशन वॉर स्टार्ट की थी गफूरे ने। और डीजी आईएसपीआर होता था जब ये, उसने बाकायदा ऐलान किया था और उसने हायर किए थे कोई हजारों स्टूडेंट्स ऑन सोशल मीडिया हाँ टू वेज ए वॉर। हाँ अब इसको आप ले जाएं यूएई में। यूएई का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जनरल शुजा पाशा। जनरल अच्छा। शुजा पाशा वाज एक्स आईएसआई चीफ। हम्म, नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी ने केस भी किया हुआ है जो चल रहा है कि राहिल शरीफ एक्स सीईओएस ऑफ पाकिस्तान और शुजा पाशा एक्स डीजी आईएसआई, ये दोनों सऊदी अरब और दुबई की गवर्नमेंट्स के लिए कैसे काम कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए वो हाँ इतने स्ट्रेटेजिक थे। और हाँ। रिसेंट पास्ट में जैसे ही रिटायर हुए ठग करके उधर चले गए। तो अच्छा। देखें आप इस इन्फ्लुएंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं शुरू से इस सिनारियो में जो है अरब अचानक जो शुरू हुआ है, इसमें एक चीज को इंसिस्ट कर रहा हूं, द रोल ऑफ कफील्स। अब कफील को मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं कि हाँ देखें ये पाकिस्तान में दुबई और ये जो अरब जो इस ये रीजन है जहां पे अबू धाबी और ये सब कतर है, वहां पे पाकिस्तान का करप्शन का बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा हुआ है, प्रॉपर्टियां, बिजनेस। आप गूगल में चेक करें इकामास ऑफ फेमस पाकिस्तानीज, खाली इतना लिख दें आपको आपको सैकड़ों इकामे नजर आ जाएंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत में जितने मिनिस्टर थे सबके पास इकामे हैं। हम्म, इकामा कैसे बनता है? इकामा ऐसे बनता है कि आप वहां पे किसी के पास प्लम्बर का है, किसी के पास क्या है, ये इसलिए लेते हैं ताकि इकामे के बाद ये वहां पे प्रॉपर्टियां खरीदते हैं। और वो इकामे में एक कफील होता है, फिर उस कफील को ये मंथली एक पैसा दे रहे होते हैं अपना मनी वाइट करने के लिए। वो कफील वहां का लोकल होता है। तो अब आप इस मैकेनिज्म को समझें कि उस कफील को मुझसे अगर महीने का $20,000 या $50,000 फायदा हो रहा है, तो वो मेरे साथ 2-3 घंटे तो रोज कहीं ना कहीं बैठता होगा, मैं हम्म, उसका माइंड बना रहा हूँ, उसको वो कर रहा हूँ। हम्म, अब उसको हमारी आर्मी है ना इन चीजों में पैसा बड़ा इन्वेस्ट करती है। हाँ तो वो अगर 25,000 रुपए में एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे 5th जनरेशन वार लड़ने के लिए लगा सकती है, तो वो 25,000 रियाल पे 2-4 अरबी भी पकड़ सकते हैं। हम्म, तो ये सब भाड़े के टट्टू हैं। जो पंजाबी आर्मी का स्टाइल है वो नजर आ रहा है यहाँ पे। इसमें कोई जेन्युइन आपको अरब अपने जेन्युइन कोस के साथ नहीं आएगा। ये इल इन्फॉर्म्ड है, ब्रेन वॉश्ड है, जैसे कि कॉमन पाकिस्तानी वो हम्म, हिंदू को और इंडिया को आज तक दुश्मन समझता आया है। अब हम्म, ये चीज वहां जा रही है। हम्म, जितना पाकिस्तान का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, पॉलिटिशियंस हैं, जितने करंट हैं, ये सब वहां पे उनके इंटरेस्ट हैं, वहां पे पेनिट्रेशन करते हैं। लोकल अरब्स में हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और उसमें बड़ी बदकिस्मती से आपका जो एक सेगमेंट है इंडियन, जिसमें आरफा ले लें, शीला ले लें, राना ले लें, आप नाम ले लें, और ये अरुण दत्ती ले लें, हाँ इन लोगों ने, मतलब ये मूर्ख वो लोग हैं जो उसी शाख को काट रहे हैं जिसपे ये लोग बैठे हुए हैं। हाँ। इनको इतनी समझ नहीं आती कि मोदी जी या किसी की भी दुश्मनी में तुम इस देश के खिलाफ क्यों बदनामी का बाइस बन रहे हो, इस देश को क्यों बदनाम कर रहे हो। वो जैसे आपने बताया कि जैसे शुरुआत में भी बात हुई, यहाँ पर एक सेगमेंट है, ये अरब कंट्रीज के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज की एक सेगमेंट है जो इस वेरी वेल बैक्ड अप बाय इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन फोर्सेस जो है उनके साथ बैक्ड अप है। तो ये आपको मुझे ये समझना है और मेरे व्यूअर्स ये समझना चाहेंगे कि ये अचानक में ये अरब में ऐसा कैसे हो रहा है? अगर ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है तो आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तानी सरकार को इसकी खबर होनी चाहिए या एक्शन लेना चाहिए उस बारे में? और जहां तक हमारी सोच जाती है, जहां तक मैंने देखा है कि पाकिस्तान इज लाइक लाइट ईयर्स अहेड इन चीजों में, काफी आगे हैं हिंदुस्तान से। देखें अचानक ये पाकिस्तान में भी शुरू हुआ था 2-3 साल पहले 5th जनरेशन वार, और ये अचानक इधर भी शुरू हुई है। पाकिस्तान की तो ये जिंदगी भर चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सी वार तो पाकिस्तान खेलता रहा है। यहाँ पे ये ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि अरब सरकार है ना, वो इन चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगी। तो मैं समझता हूँ आपका ये सवाल कि भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, तो ऑब्वियसली करना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि दे माइट बी डूइंग समथिंग। डिप्लोमेटिक लेवल पे क्वेश्चन उठा रहे होंगे कि भाई किस हिसाब से आपके ये अरब शुरू हो गए, तो क्या फिर हम भी शुरू हुआ, हमारे मिनिस्टरों को हम खुला छोड़ दें कि वो आपके यहाँ की सारी बातें करें।
तो इस तरह डिप्लोमेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं चीजें चल रही होंगी। और अरब्स इस मामले में गवर्नमेंट्स है ना, वो बड़ा सख्ती से वो फिर इन चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये हफ्ते 2 हफ्ते में चीजें बाहर आ जाएंगी और खत्म हो जाएगा। जैसे ओमान की जो प्रिंसेस हैं, हाँ उसने कहा है कि मेरा मेरा अकाउंट हाँ पर्सोनेटेड था, जिसमें हाँ उन्होंने बिल्कुल। जेनोसाइड वगैरह की ट्वीट की थी ना, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है ऑलरेडी। और ये इंटरव्यू में भी अभी इन्होंने बहुत लाइट लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन बैकलैश जब आया है ना, और फिर जब अब गवर्नमेंट के तरह उस पर पूछा जाएगा ना इनसे कि भाई ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप हर आदमी उठ के बोलना शुरू कर दिया है, तो इन अरब कंट्रीज में ये चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सी चीजें अलाउड नहीं है। तो आई एम श्योर कि वहां की गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी और इंडियन सरकार भी इस पे मस्त काम कर रही होगी। अच्छा अच्छा। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? जैसे जैसे अरबी देशों में तो आपने बोला कि ऑब्वियसली जैसे हम भी जहां तक जानते हैं, दे ऑल अबाउट मनी। पैसे के मामले में वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जहां तक मैं जानता हूँ। जैसे और इंडिया से उनका काफी फायदा है इस समय। तो एक वो लेवल पे एक देख सकते हैं। बट आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान ये 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, दे आर वेरी सक्सेसफुल। यहाँ पर चाहे यूके में हो या यूएस में हो या कनाडा में हो, चाहे वो खालिस्तान बैक्ड हो या इस्लामिस्ट बैक्ड हो, वो बहुत सक्सेसफुल है। तो आपके आपके विचार में, जैसे आप यूएन भी रेगुलरली अटेंड करते हैं और ह्यूमन राइट्स के, तो उनके तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान या भारत की सरकार एक एक दे आर ऑन द बैक फुट, के वो लैक करती है कुछ चीजें इन जगहों पर? देखें, मैं अपनी कई वीडियोस में इस पर डिटेल में बता चुका हूं कि वाकई ये बात सही है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान इज मोर स्ट्रॉन्ग। इसमें कई चीजें शामिल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान है ना, शुरू से जो आउट ऑफ पाकिस्तान जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, वो जिन उनको एम्बेसी के जरिए अटैच रखती है। अभी इसकी मामूली मिसाल दे दूंगा कि मैं आज यहाँ पे ऐलान कर दूं कि मैं इंडिया के खिलाफ, मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, इंडियन एम्बेसी के सामने मुजाहरा करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, तो 15,000 20,000 पाकिस्तानी जमा हो जाएगा मेरे प्रोटेस्ट में। लेकिन आज आप ऐलान कर दें कि मैं ये वॉशिंगटन प्रोटेस्ट कर रहा हूं पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के खिलाफ, तो 25 हिंदू भी मुश्किल आप जमा कर सकोगे। सही तो बात। एक तो ये बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आपके पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करती। जो एनआरआईज हैं वो हाँ कहते नहीं हैं कि करते, ये सही हमारी बात। ड्यूटी नहीं है, ये कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है। तो फिर भाई ये एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो फिर आप बाहर निकल के ये आप जान छोड़ा नहीं सकते, आपको इन्वॉल्व में होना पड़ेगा। आपको लोकल पॉलिटिक्स में इंडिया के आप एम्बेसडर हो इंटरनेशनल लेवल पे। और इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इंडियन एक बहुत गुड पिक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में। और इंडियंस की बड़ी इज्जत होती है, लोग उनको प्रोफेशनल, ऑनेस्ट विद देयर ड्यूटी, ऑनेस्ट विद देयर पार्टनर्स, और इन चीज़ों को लोग कदर करते हैं। लेकिन फिर मैं ज़रा इनसे एक शिकायत यही करता हूं कि कभी इन्होंने अपने देश के मामले के लिए इंटरनेशनल लेवल पे फाइट नहीं की। जैसे मैं एक आम पाकिस्तानी हूं ना, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहा हूं ना अपने मुल्क के लोगों के लिए। हाँ ऐसे आपको बहुत कम इंडियन को ऐसा मिलेगा जो 1000 में से एक होगा जो अपने देश की पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान है ना, उसकी आईएसआई के पास एक खुला डुल्ला पैसा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आपका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें हर चीज का हिसाब किताब होता है। अब इस 5th जनरेशन वार की मिसाल ले लें, इसमें जो अरबों रुपया लग रहा है या करोड़ों डॉलर लग रहे हैं इसमें, उसमें पाकिस्तान की कोई सरकार आईएसआई से पूछ नहीं सकती कि आपके कितने पैसे लगाए, कहाँ लगाए, क्या है। इंडिया में एक एक चीज का हिसाब होता है, तो खुला डुल्ला पैसा नहीं। इंडिया की एक शराफत कह लें, क्योंकि शरीफ आदमी की बड़ी कमजोरियां होती हैं, तो इंडिया की एक शराफत भी है कि पाकिस्तान के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, एक चीज हमें जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान की जितनी भी आबादियां हैं, सिंधी, बलोच, पख्तून, ये सब इंडियन थे 70 साल पहले। हाँ हाँ तो आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो संतान ऑफ इंडिया। तो हमारे जो जेन्युइन इशू हैं, जैसे मुहाजिरों के साथ जुल्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे सिंधियों पर तबाही हो रही है, जैसे बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जैसे पख्तूनों का हो रहा है, जैसे पीओके में हो रहा है, गिलगित में हो रहा है, उन चीजों पे इंडिया कभी सपोर्ट नहीं करता। हाँ जबकि सही। आपके यहाँ जो इशू नहीं है, एक मिसाल है खालिस्तान, मुझे कहीं इंडिया में कहीं पंजाबियों के ऊपर, सिखों के ऊपर कोई नहीं डिस्क्रिमिनेशन या उनके ऊपर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या कोई चीज नहीं हो रही ना। फिर नहीं। भी खालिस्तान, पाकिस्तान ओपनली सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे हैं।
एक बलोच आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों इंडिया सपोर्ट नहीं करता? बेचारे हम लोग चंदे जमा करके आपस में यहाँ पे जो वर्किंग बलोच होते हैं, अब वो बलोच किस तरह एक्टिविटी करते हैं, कोई $10 दे रहा है, कोई $20 दे रहा है, इस तरह करके सस्ते होटलों में रह के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे अपना केस चला रहे हैं। इंडिया डज नॉट सपोर्ट। यहाँ पे एक कमजोर, ये पाकिस्तान दे मार 4.5 आसाम पे आ जाएगा, त्रिपुरा पे आ जाएगा, नागालैंड पे आ जाएगा, मणिपुर की आजादी के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगा, खालिस्तान है, जम्मू एंड कश्मीर है, इंडिया के मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, 24 घंटे पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा। ना बलोचों के लिए इंडिया कुछ कर रहा है। 2 या 3 बार अपनी पार्लियामेंट में खाली बलोच का जिक्र हुआ है तो हम लोग खुश हो गए कि हाँ इंडिया ने तो बलोचों के बारे में बात कर ली, लेकिन नो सपोर्ट। तो फिर आप जब एक डिप्लोमेटिक वार की बात करते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा कामयाब है, तो इसलिए पाकिस्तान कामयाब है कि पाकिस्तान डज नॉट फॉलो एनी एथिक्स, और इंडिया आज भी शराफत में और एथिक्स में, नहीं जी इंटरनल मसला है, नहीं जी इनका इंटरनल मसला है, वी डोंट टॉक अबाउट इंटरनल इश्यूज। अरे भाई ह्यूमन राइट्स का मसला है और कुछ नहीं, तो इंसानियत के नाते ही कम से कम हमारे लिए आवाज उठाओ, हमारी मदद करो। हम पाकिस्तान नहीं तोड़ना चाहते, हम कह रहे हैं कि वहां पे हमें आजादी दिलाओ आर्मी से। आर्मी, ऑपरेसिव आर्मी ने पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे और पब्लिक पे कब्जा किया हुआ है, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के हमारी मदद करो, ये हम कह रहे हैं। जबकि इंडिया, पाकिस्तान क्या कर रहा है, खालिस्तान बनेगा, 2020 रेफरेंडम होगा। बताएं, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को भी पाकिस्तान इतना एक्सप्लॉइट करता है, खुल के कहता है कि हम कश्मीरियों की हर तरह से मदद करेंगे, फाइनेंशियली भी करेंगे, आर्म्स भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, खोले हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर। इंडिया में कहीं मुझे कोई एक बलोच ट्रेनिंग सेंटर बता दें या पख्तून ट्रेनिंग सेंटर बता दें, तो फिर या तो फिर आप ये सवाल कर ही नहीं सकते कि इंडिया कमजोर है डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग डिफेंसिव। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, नहीं ये बात तो मैं आपसे एक 100% सहमत हूँ कि खासकर जैसे आपने खालिस्तान और बलूच 2 इशू उठाए हैं। जैसे खालिस्तान में मैं नहीं समझता कि मैं भारत में जितने साल रहा हूँ या जितना भी, जब मेरे जितने पंजाबी सिख दोस्त है, वहां पर आप खालिस्तान का इशू पे बात ही नहीं कर सकते, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पर। आप देखोगे इतिहास में मेरे ख्याल से वहां पर कुछ पॉलिटिशियन ने इलेक्शन लड़े तो जमानत जब्त हो गई थी उनकी, ठीक है। तो खालिस्तान का वहां पर कोई इशू ही नहीं है। सिख्स आर वेरी वेल एक्सेप्टेड, मैटर ऑफ फैक्ट सिख तो एक ग्लोरिफाइड लोग है वहां पर, लोगों तो प्राउड फील करते हैं। सिख बॉलीवुड की पिक्चरें देख ले, सब जगह पर देख ले, एक प्राउड फील है सिख कम्युनिटी में, और पंजाबी होने में एक अलग ही फीलिंग है, एक माना जाता है वो। और ये जो इशू नहीं है उसको इशू बताया, हालांकि बलूची एक्टिविस्ट पूरी दुनिया में है, और जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन इशू है बलोच। हाँ, लंदन में तो काफी मेरे ख्याल से बलूच फ्रीडम मूवमेंट का एक हेडक्वार्टर्स है लंदन में। ओह यस। हाँ, तो वहां के लोग हैं पूरी दुनिया भर में। कुछ लोग हमसे कभी मिलते हैं यूएस में भी। अभी मैं कुछ दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में था, व्हाइट हाउस के बाहर मैंने एक बहुत बड़ी ट्रक, कुछ दिन मतलब पिछले साल जब इमरान खान यहाँ पर आया था, उस समय पे काफी बड़ी ट्रक्स देखी जिसके ऊपर लिखा था फ्री बलूचिस्तान का। तो जब ये लोग और वो लोग लड़ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि भले छोटे ही लेवल पे है, मिडिल क्लास लोग पैसे कर रहे हैं, तो अगर मेरे ख्याल से अगर एक इंसानियत के नाते अगर मदद करनी चाहिए, मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात की थी, तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि हो सकता है कि एक इंसानियत के नाते, देश तोड़ना नहीं है बट एक इंसानियत के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। देखें, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपका एक सिटीजन है दाऊद इब्राहिम, हाँ, वो एक वर्ल्ड रिनोवन टेररिस्ट है जिसने इंडिया में आतंक का एक अंधेर मचा के रखा हुआ है पिछले 40 सालों से, जिसको यूनाइटेड नेशंस स्टेट डिपार्टमेंट टेररिस्ट डिक्लेयर करार दे चुकी है, वांटेड टेररिस्ट। पाकिस्तान में मजे से रह रहा है, पाकिस्तान में बादशाहों की तरह रह रहा है, जबकि इसके मुकाबले पे अब आ जाते हैं, एक पाकिस्तानी सिटीजन है बरामदाग बुक्टी, स्टेटलेस है बेचारा, जिनीवा में अजाइलम की आखिरी एप्लीकेशन पे चल रहा है। उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की इंडिया से कि मुझे अजाइलम दें, आपके देश ने नहीं दी। ये फर्क है कि एक जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन इशू पे एक कौम के लिए आवाज उठाने वाले मजलूम बलोच, जिसके दादा को मार दिया गया, जिसके बाप को मार दिया गया, जिसके कई रिश्तेदारों को मार दिया, जिसकी कौम को तबाह कर दिया, वो हाथ जोड़ के अपने ही दादा मुल्क, क्योंकि हमारा मदरलैंड तो इंडिया ही है ना, पाकिस्तान तो 70 साल से हम पाकिस्तानी है, अपने ही मदरलैंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आप अजाइलम दें, नहीं दी।
वीजा तक नहीं दे रहे, ठीक है। पाकिस्तान का क्या फर्क है? दाऊद इब्राहिम एंटी इंडिया हो ना, आ जाओ हाँ हाँ इधर इस्लामाबाद में अय्याशी करो। हाँ भाई तुम कौन हो सरदार साहब? मैं जी खालिस्तान जी, आ जाओ इस्लामाबाद, सारे रिसोर्सेज खजाने खोल कर रख दिए। ये फर्क है। सिमी जो इंडियन मुजाहिदीन बन गए हैं, उनके भी भटकल फैमिली वहीं पर है, हाफिज जिन्होंने सीरियत सईद ब्लास्ट है आपका, करवाया है। मौलाना अजहर है। भाई आप मुझे ये बताएं कि मौलाना अजहर एक इंडिया का क्रिमिनल जिसको हवाई जहाज अगवा करके इंडिया से छुड़ाया गया, हाँ हाँ फिर किस हाँ मुंह से पाकिस्तान ने उसको रखा हुआ है? अगर कोई गैरतमंद मुल्क होता तो वो कहता कि ये आपका क्रिमिनल जिसके लिए हवाई जहाज अगवा किया गया, ये ले इंडिया साहब, ये तो आपका मुजरिम है। लेकिन ऐसा बनाना रिपब्लिकों में होता नहीं, और पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए इंडिया कहता हम ये नहीं करेंगे। इंडिया बड़ा शराफत में रहता है। हम तो आजाद, मादर पितर आजाद है, बनाना रिपब्लिक है, हमें कौन रोकता है पाकिस्तान को? हाँ कोई एथिक्स नहीं, कोई रूल्स फॉलो करने के नहीं होते हमारे को। हाँ। पर ये बात एक चाणक्य का कोट है, द स्ट्रेट ट्रीज गेट कट डाउन फर्स्ट। जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे वही जाते हैं। पहले तो कटता है। ये हाँ। हिंदुस्तान जितना जल्दी समझ ले, ये दुनिया का अच्छा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो सुपर पावर है और जिसने ऑफेंसिव ना खेला हो। जब यूनाइटेड स्टेट्स को देखोगे, मुझे नहीं लगता इनके एग्जिस्टेंस में जो आज तक ऐसा कोई एक डेकेड गया होगा जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई वॉर नहीं लड़ी, और वो भी ऑफेंसिव वॉर नहीं लड़ी। डिफेंसिव की भी बात, इन्वेजन, ऑफेंसिव। तो अगर इन्वेजन। अगर जब हिंदुस्तान घिरा हुआ है, एक्सक्यूज मी, एक तरफ चाइना से, एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ बांग्लादेश से, जब तक मेरे ख्याल से शेख हसीना है जो प्राइम मिनिस्टर, तब तक कुछ हालत ठीक है। और मेरे ख्याल से चाइना अभी भी वो साइड का जो पूरा जो नेवल एरिया है उसको घेर रहा है। तो जब आप इतने विशियस एटमॉस्फेयर में घिरे हुए हो, तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंसिव खेलने में कुछ ज्यादा जिंदगी बचेगी। मैं यहाँ पे एक चीज के लिए होपफुल हूँ कि देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, जब इंडिया के डिफेंसिव स्टैंड की और इन सारी चीजों की, ये इंडिया की हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं। क्योंकि प्री आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हुआ कि हमने, इंडियन सरकारों ने बहुत डिफेंसिव खेला और पाकिस्तान की हर बदमाशी को एक्सेप्ट करते रहे। इंटरनेशनली भी हमने एज एन इंडियन अलाइज नहीं बनाए, हम वही नॉन अलाइन मूवमेंट और नॉन अलाइंड स्टेटस पे ही चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि 2014 के बाद और खासतौर पे 2019 के बाद जो इंडिया की सरकार आई है, दे आर बिजी इन करेक्टिंग हिस्टोरिकल ब्लंडर्स। अब आप इसके लिए थोड़ा टाइम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ सही बात। अभी तो इनको, हाँ, 4-5 साल हुए हैं और हिस्टोरिकल ब्लंडर्स। फिर दूसरा ये है कि ये कोई थियोक्रेसी नहीं है इंडिया, कि हाँ हाँ जहां सही। पे उन्होंने डंडे के जोर पे, जैसे चाइना में पाकिस्तान पे डंडे के जोर पे, ऐसे नहीं, इनको अपनी आवाम को ऑन बोर्ड लेके सब चीजें चलानी पड़ती हैं। फिर एक सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कि माइनॉरिटीज के साथ कुछ ना हो जाए, ये सब चीजें एहतियात के साथ। इसके बावजूद देर इज ए बिग चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपके अलाइज मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका का सदर, मुझे बता दें हिस्ट्री में कौन से अमेरिका का सदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इतना दोस्ती मोहब्बत सही और, बात। है ना? तो फिर जनरल आप देखें अरब्स के साथ, अबू धाबी में हिस्ट्री का पहला मंदिर बना ना भाई, हाँ हाँ मोदी जी ने ही उसकी ओपनिंग की थी। फिर सऊदी अरब में इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया, सऊदी अरब की तरफ से इंडिया में। और फिर वेस्ट में आप देखें, अमेरिका में जो कहते हैं कि साइंटिस्ट हैं और ये जो टेक्नोलॉजी की लाइन में, तो 33% इंडियन है। तो इंडिया का एक रोल है, मैं समझता हूँ इंडिया हैज चेंज्ड अ लॉट। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आप ओवरनाइट ये सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को, गिव देम सम टाइम। मैं समझता हूँ यू हैव अ वेरी डेडिकेटेड टीम, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि ऑनेस्टली और अनबायस्ड होकर इंडिया के अफेयर्स को बेटर कर रही है। एंड इट विल टेक टाइम, पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। और मैं समझता हूँ कि अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में परसों पढ़ रहा था कि 93% इंडियंस आर बैकिंग मोदी जी एज ए लीडर और उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं अपनी पॉलिसीज में। अब 93% इज ह्यूज। या अगर बेल्जियम की आप बात करें तो 1 करोड़ में 93% का मतलब वो 93 लाख है। लेकिन यहाँ 130 करोड़ का 93% करें तो मोर देन ए बिलियन पीपल आर सपोर्टिंग दिस मैन। तो या इसमें कुछ तो बात है ना, या तो ये सही सब बात। बेवकूफ तो नहीं है ना भाई। तो जो 7% है ना, जो ची पै करे जा रहे हैं,
तो अब वो 7% को करने दें चीपे चीपे। 93% नो दैट कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। और यही मैं एक बात करना चाहूंगा उन लोगों से, क्योंकि ये जो आपने लोग 7% किया उसमें कई सब है ऐसे, तो मैं नहीं कहूंगा कि मुसलमान ही है, हिंदू उसमें काफी है। है बिल्कुल है, हाँ हाँ। तो ये बात कहनी गलत होगी कि सिर्फ मुसलमान ही मोदी के खिलाफ है, ये तो सरासर गलत बात है। और अरे आपके निधि राजदान ने इनसे इंटरव्यू लिया है, वो मुसलमान नहीं है। आपकी अरुणा दत्ती खोल के वहां पे हिंदुओं को गालियां दे रही है, वो वो तो मुसलमान पेशा नहीं ही है। आपकी उसका। स्वरा भास्कर को, अनुराग अनुराग कश्यप को आप नाम ले, इतने बहुत सारे भरे पड़े। हाँ, वही कहना है कि जो लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं, जिनका ये ब्रेन वॉश कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी है, काफी है, और नॉन मुस्लिम भी है। तो मेरा एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर जो भी ये बात सुन रहा है, आप ये देखें कि अगर आप सही में अपने देश से, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, तो ये समझे कि देश के लिए कौन सही है और कौन नहीं है। ये आप सिर्फ 70 साल का सही इतिहास भी पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे ज्यादा समझने की ना इस समय पे जरूरत भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आई एग्री 100%। और देखें इंडिया में चीजों को करेक्ट करते वक्त है ना, आपको मुसलमानों से ज्यादा तकलीफ इस किस्म के हिंदुओं से है। हाँ, सही क्योंकि बात। इंटरनेशनल प्रेस और इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज है ना, जब इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे बैठती हैं या मीडिया में जो चीजें चलती हैं, तो वो फिर कोट करते हैं इन हिंदू सेगमेंट्स को। फिर देखो हाँ, इवन हाँ, वहां हाँ, के हिंदूज आर स्क्रीमिंग। तो हाँ, और फिर आप इन हिंदुओं को किस तरह से आप समझाएंगे? आप जावेद अख्तर को या फरहान अख्तर को या इन लोगों को तो आप वो कह देंगे कि चलो वो बायस्ड हैं या वो हाँ, अपने हाँ, वो अभी तक मुसलमान माजी से निकले नहीं है एथिस्ट वगैरह। मुसलमान एक नई कौम है ये। मसला तो ये लोग हैं। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज में बरकात हैज बीन राइटिंग फॉर वॉशिंगटन पोस्ट रिलेंटसली, आज भी लिखती है वो। कहीं मुझे नहीं पता वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिखती है नहीं, बट उसने कई हजारों में आर्टिकल्स लिखे हैं। और ऐसे जब ऐसी बात होती है यहाँ पर, जब समझो कोई पाकिस्तानी भी हमको आके कुछ बात करते हुए मिलता है, तो बोले ये देखो, ये तुम्हारे हिंदू लोग इंडिया से ये बात कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अरुणा दत्ती को ले लें, अब वो क्या है कि उनको एक बुकर्स प्राइज मिल गया, उनके एक नॉवेल के ऊपर मिल गया उनको। जैसे आपने देखा होगा कि मलाला यूसुफजई वेस्ट ने क्रिएट कर दी, हाँ, फिर हाँ, अभी एक क्लाइमेट चेंज पे वो रीटा रीटा नाम है क्या लड़की है, हाँ, 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 तो इस हाँ, तरह बना देता है। अब अरुणा दत्ती का आप ट्रैक रिकॉर्ड ले लें, नर्मदा डैम आंदोलन इन्होंने किया, उसमें हाँ, उन्होंने फैक्ट रिपोर्ट्स क्लाइमेट चेंज के हवाले से दी कि ये गलत है, हालांकि वो वेरी इंपॉर्टेंट डैम बन रहा था। फिर इन्होंने कश्मीर के ऊपर क्लियरली कहा है कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई एम सपोर्टिंग देम। 2010 में कन्वेंशन में अली गिलानी और ये यासीन मलिक के साथ बैठ के इन्होंने कश्मीर की आज़ादी की कन्वेंशन पे वो किया है। इन्होंने जितने भी ऐसे इश्यूज हैं, इन्होंने कहा कि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये सब फेक है, सब झूठ है। इन्होंने हर चीज में एंटी इंडिया स्टैंड लिया और वेस्ट ने उसको बड़ा सपोर्ट किया। हाँ, तो दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में मैं समझता हूं, मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में भी सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि हेट स्पीच के लॉ को स्ट्रॉन्ग करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करें। दुनिया में ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इंडिया में एंटी मुस्लिम चीजें चल रही हैं, हाँ, जबकि इनफैक्ट आप देखा जाए तो कम्युनलिज्म को ये मुस्लिम लिखारी और ये जो लिबरल्स हैं, ये कम्युनलिज्म को भड़का रहे हैं। एंड भड़का दैट रहे। इज वेरी डेंजरस। इंडिया हैज टू ब्रिंग ए लॉ टू स्ट्रॉन्ग लॉ फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच या हेट स्पीच, इसको कंट्रोल करना होगा। हाँ, हाँ, बट जैसे आपने कहा कि हाँ ऐसे लोग, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ सरकार को तो सही डेफिनेटली, बट एक आवाम को और हिंदुस्तान की जनता को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा कि इनकी जो दलीलें होती है, इनके जो आर्टिकल्स या दलीलें होती है, इनको खारिज करें। और मेरे ख्याल में एक जनता को भी अपना एक दायित्व निभाना पड़ेगा यहाँ पर, जो अपना रोल समझ करके as a country, as a citizen, they have to stand for the country and understand who is the enemy and who is the friend. जनता को तो मेन रोल है, जनता को समझना होगा। देखें अभी हिंदुस्तान की जनता इस डेमोक्रेसी में बहुत ही पीछे है, सॉरी टू से। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना पॉलिटिक्स में, वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स होता है। हाँ,
अब आप मिसाल अगर देते हैं कि जॉर्ज बुश सीनियर का बेटा भी तो जॉर्ज बुश जूनियर भी तो सदर बना, तो वो एक प्रोसेस से आया, सबके मुकाबले करके नॉमिनेशन हासिल की स्टेट लेवल पे, फिर पार्टी लेवल पे, फिर कंट्री में जाके प्रेसिडेंट बनाए। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से। मैं खाली गांधी क्लैन की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हर स्टेट में आप जाकर देखें, लालू जी यादव हैं, उनका बेटा, फिर मुलायम सिंह यादव हैं, उनका बेटा, फिर फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, फिर ये, फिर आप आ जाएं तो पंडित नेहरू जी, तो फिर इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी, तो फिर राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी हटते हैं तो माँ को बना देते हैं, माँ को हटती है तो बेटे को बना देते हैं। अरे इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, इतने जेन्युइन किस्म के लीडर्स हैं उसमें, क्या कोई एक आदमी इनके पास ऐसा क्वालिफाइड नहीं है? Why it is necessary to have a Gandhi on as a surname to be president of Congress? इसी तरह आप जहां पे जाएंगे आपको इस मेजोरिटी में लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आपको नजर आएंगी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के, इसका बेटा बना है, पहले ये एमएलए था, अब इसका बेटा बना है या बेटी बनी है। ये कब निकलेंगे आप? ये यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगा। है यहाँ पे भी फैमिली पॉलिटिक्स हैं। अब वो पॉलिटिशियंस इसको क्या वो जस्टिफाई करते हैं कि एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है। तो अरे भाई, गवास्कर का बेटा नहीं चला तो नहीं चला, फिर निकल गया। अभी अमिताभ का बेटा नहीं चला तो नहीं चला, अब उसको फिल्में नहीं मिल रही हैं। लेकिन आपका बेटा चले के ना चले, सारी जिंदगी उसने प्रधानमंत्री बनना है या फिर वो चीफ मिनिस्टर बनना है, मुख्यमंत्री बन रहा है, या एमएलए तो रहना ही रहना है, फिर उसका बेटा भी बनेगा। तो दिस इज डिफरेंस। आप अपनी क्वालिटी पे आगे आए, मोस्ट वेलकम। राहुल गांधी साहब अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं शशि थरूर साहब को हरा के या चिदम्बरम साहब को हरा के, लेकिन मैं ऐसे लोगों पे हैरान होता हूं कि राहुल गांधी इन चिदम्बरम साहब और इन लोगों की गोद में खेलते थे, इनके बॉस कैसे बन गए? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीजें नहीं होती। तो इंडियन जनता को बड़ा समझना होगा कि ये आपको तब्दीली लानी है तो आपको फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को तो बहुत दूर तक छोड़ना होगा। और जब तक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स रहेगी, करप्शन तो रहेगी। और सॉरी टू से, इंडिया की आर्मी नीट एंड क्लीन है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत करप्शन है। तो आरिफ भाई, एक आखिरी स्टेटमेंट मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को बोले, और जो खासकर भारत में है, और जो हालांकि आप सिचुएशन देख रहे हो खासकर 2019 के बाद, ये जो एक बड़ा ये सब हुआ है, चाहे शाहीन बाग हो, हालांकि अलग टॉपिक है, हमने बात नहीं की उस पर। ओवरऑल एक जो माहौल बनता दिख रहा है, ठीक है, जो एक बहुत ही विशियस माहौल, बहुत ही जहरीला माहौल मैं समझता हूँ, ऐसे कहा जा सके, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोविड में जो आपने देखे ये जो चीजें हो रही है, डॉक्टरों पे हमला करना, ये एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड है ये सब चीजें। तो आपके इस चीज के लिए क्या एक मैसेज होगा, और खासकर मैं चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये मैसेज है मेरा कि हम भी इसी हिंदुस्तान के मुसलमान थे, हमने गलती कर दी, हमारे आबा अजदाद ने गलती कर दी कि हिजरत कर दी। तो हिजरत कर दी ना, तो फिर हम जानते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान में क्या सलूक हुआ है। मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक स्टेप पे हमें डिस्क्रिमिनेशन का, तो लकी आर यू पीपल दैट यू हैव नॉट माइग्रेटेड, यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी विच इज टॉलरेंट एंड विच हैज ह्यूमन राइट्स। जनरली देखें, जो सिनारियो चल रहा है ना आपके इंडिया में, वो ओवरनाइट क्रिएट नहीं किया गया। ये इसमें पाकिस्तान का रोल आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सारे स्लीपर सेल्स एक साथ जगा दिए गए हैं, एक कम्युनल वेव चला दी गई है। और इसमें फिर क्या होता है कि देखें, मुसलमान जिस किस्म की हरकतें कर रहा है ना इस वक्त, सॉरी टू से, कि जैसे पथराव करना, जैसे तबलीगियों ने पूरे इंडिया में जैसे फैला दिया। अब आप उसको, वो जो मुसलमान लिखारी हैं और ये जो हिंदू लिबरल्स हैं, पहले वो उनको तो करेक्ट करें, उनको बोलें कि आप ये क्या इंप्रेशन लेके जा रहे हैं दूसरों के सामने और आप ये मौत फैला रहे हो, इनको तो समझाएं। उनको कोई नहीं समझा रहा। हिंदू इस्लामोफोबिया के नाम पे इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं
कि इंडियन सरकार को है ना बड़ा केयरफुली चलना होगा, क्योंकि कुछ सेक्शंस ऑफ हिंदू पॉपुलेशन अब उनकी पेशेंस बर्दाश्त बाहर हो रही है कि यार हम कोई पागल के बच्चे हैं कि 130 करोड़ लोग कुर्बानी देके घरों में बैठे हुए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, और तुम उस मामले को पूरा खराब कर रहे हो। यार कब तक तुम लोगों के लाड उठाएं, यार कब तक तुम लोगों को बर्दाश्त करें, यार तुम लोगों की बेवकूफियां बर्दाश्त कर करके थक गए। मैंने अभी एक वीडियो देखी है भिंडी बाजार की, वहां पे चलने की जगह नहीं, इतनी पब्लिक है। इसी तरह जामा मस्जिद पे, तो भाई फिर आम आदमी को आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर हिंदू का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर इंडिया के लिए बहुत सूरत हाल खराब होगी कि आफ्टर ऑल ये जो 200 मिलियन मुसलमान है ये भी इंडियन है और ये आप ही के बच्चे हैं। अब अगर एक बच्चा खराब बिगड़ा हुआ है या गलत काम में है तो माँ बाप उसको मार तो नहीं देते, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त इंडियन सरकार वाकई एक बहुत मुश्किल मरहले में, इनके लिए बड़ा एहतियात से चलना होगा चीजों को करेक्ट करने के लिए। करंटली बहुत ज्यादा फ्यूल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और अंदर खाने आपके यहाँ से चीजों को करेक्ट करना होगा। मेरा ख्याल है कि वेरी केयरफुली जाना होगा, क्योंकि कम्युनल बेस पे इंडिया का तबाही ये खाली पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है, ये बड़ी बड़ी ताकतों की भी ख्वाहिश है। क्योंकि अगर इन लोगों को एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहिए था तो 1947 में बंटवारा ना होता। बंटवारा क्रिएटेड था, बंटवारा प्लान था, बंटवारा इम्पोज था। ये कोई आवाम की आवाज नहीं थी, ये मुसलमान आजादी नहीं चाहते थे। 1940 से पहले तो मुसलमान को पता ही नहीं था। ये अचानक इनको इंडिया में मसले नजर आ गए, अचानक इनको नजर आ गया कि हिंदू के साथ नहीं चल सकते। अबे 800 साल से तो हिंदुओं के साथ चल रहे थे। तो ये सब इम्पोज था। तो कुछ पावर्स भी हैं जो चाहती हैं कि इंडिया का जो प्रोग्रेस है ना उसको हाल्ट करने के लिए इनको बेस्ट आइडिया टू कीप देम बिजी इन कम्युनल वॉरफेयर। वेरी केयरफुल चलना होगा। आरिफ भाई, thank you very much for giving your time, and it is always pleasure to talk to you. Ara, thank you very much, and it is always an honor to be on your platform. Thank you, and namaskar.